रांझना मूवी की एंडिंग चेंज करके उसे री रिलीज किया गया है, जिसको लेकर डायरेक्टर आनंद एल राज एंड बाकी लोग बिल्कुल खुश नहीं है। पर वो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि मूवी के राइट्स उनके पास नहीं है। तो ये मूवी अभी तमिल में रिलीज की गई है एंड एंडिंग को एआई की मदद से चेंज कर दिया गया है, जिसमें कुंदन की डेथ नहीं होती। जिन्होंने ये मूवी देखी उन्हें पता होगा कि इसमें मेन कैरेक्टर कितना प्रॉब्लमेटिक था। लास्ट में हैप्पी एंडिंग दिखाने का मतलब है उसकी हर गलती को जस्टिफाई करना। तो ये मूवी अपने फ्लॉज के साथ ही अच्छी थी। मूवी के डायरेक्टर आनंद एल राज इस चीज पर बहुत ज्यादा अपसेट है और वो बहुत सारी चीजें पोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, पास्ट फ्यू वीक्स हैव बीन सरिल एंड डीपली अपसेटिंग टू वॉच रांझना, a film born out of care, conflict, collaboration, and creative risk, be altered, repacked, and re-released without my knowledge or consent, have been nothing sort of devastating. What make it worse is the complete ease of casualness with which it's been done. उन्होंने clearly कहा, I do not support or endorse AI altered version of Ranjana. It is unauthorized. I had no role in it. Neither did the team that made the film. And whatever it claims to be, it is not the film we intended or made. This was never just a film to us. It was shaped by human hands, human flaws, and human feelings. What now being circulated is not a tribute. It is a reckless takeover that stripped the work of its intent, its context, and its soul. The idea of our work can be taken and modified by a machine, then dressed up as innovation, is deeply disrespectful. I am speaking for everyone who helped bringing this film to life. The writer, actor, composer, lyricist, editor, technician, and large crew. None of us were consulted. None of us were heard. If Ranjana meant something to you, as it did to us, please know that this AI-altered version does not reflect who we were. Nor does it carry the spirit of the film we made. उन्होंने और भी बहुत सारे पोस्ट किए हैं इस चीज के अगेंस्ट. He said they changed the ending of Ranjana by using AI. And Kundan doesn't die anymore. But what they don't realize is the film dies instead. Rewriting Ranjana's ending is like making Jack survive in Titanic, hugging Rose smiling in camera, singing a happy tune. You didn't fix the story, you killed the soul. Films are shaped by human flaws, not machine logic. By heartbreaking regret. Grace, not convenience. Kundan didn't just die, he chose to die because he loved Zoya till the end. That quiet surrender, that final line, that stillness, that's why Ranjana still haunts us. Now some people have had AI changes that without the director's consent, without the writer permission, just because it can. And whatever he is saying is 100% true. रांझना कोई नॉर्मल फिल्मी लव स्टोरी नहीं है जहाँ दो लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं एंड दुनिया बहुत बुरी है। यहाँ कैरेक्टर्स भी बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं और उन गलतियों को जस्टिफाई भी नहीं किया जा रहा है। लोग सेल्फिश होते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, लोगों को जलन भी होती है। ये सारे इमोशंस दिखाए गए हैं एक ह्यूमन के एंड ये स्टोरी कुंदन के पर्सपेक्टिव से है, वो नरेट कर रहा है। एंड लास्ट में जो उसके डायलॉग्स हैं वो सोल है मूवी की, जो आज 12 साल बाद भी लोगों को याद है, पर उसे ही चेंज कर दिया गया है। फिल्म के लीड धनुष ने भी इस पर अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने लिखा था, री-रिलीज ऑफ रांझना विद AI altered crime has completely disturbed me. This alternate ending has stripped the film of its soul. And the concerned parties went ahead with it, despite my clear objection. This is not the film I committed to 12 years ago. The use of AI to alter films or content is deeply concerning precedent for both art and artists. It threatens the integrity of storytelling and the legacy of cinema. I sincerely hope that stricter regulations are put in the place to prevent such practices in future. वैसे भी आजकल बहुत सारी रील्स बनती है जिसमें लोग कुंदन को ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं कि उसके साथ गलत हुआ, तो बहुत सारे लोगों को मूवी वैसे भी समझ नहीं आई एंड नाउ दे हैव चेंज द होल मीनिंग विद AI. जिन्होंने नहीं देखी होगी उन्हें लग रहा होगा कि सिर्फ एंडिंग ही तो चेंज की है, ऐसा क्या ही हो गया। सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट दे आर ट्राइंग टू जस्टिफाई. मूवी में दिखाया गया है कि मुश्किल से 8-10 साल के हिंदू लड़के को एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है। उसके बाद ये लोग 9th-10th में आ जाते हैं और वो इसे दिन रात हर जगह स्टॉक करता रहता है। बैकग्राउंड में AR रहमान के गाने चल रहे हैं तो ये सब उतना भी क्रीपी नहीं लगता, बट रियल लाइफ में ये चीज बहुत क्रीपी है। फिर वो उसे प्रपोज कर देता है एंड शी स्लैप्स हिम, जिसके बाद ये रोज झापड़ खाने जाता है। फिर अपना कोई झूठा मुस्लिम नेम बता देता है और उसे पता चल जाता है एंड शी स्लैप्स हिम अगेन, जिसके बाद वो उसे धमकी देता है कि अगर तुम नहीं मानी तो हम अपनी कलाई काट लेंगे एंड वो मान जाती है। एंड ये बात जोया के पेरेंट्स को पता चल जाती है तो वो उसे किसी रिलेटिव के घर भेज देते हैं पढ़ाई के लिए। एंड एक और लड़की है बिंदिया जो कुंदन को पसंद करती है एंड इसे ये लोग बस अपने फायदे के लिए यूज करते रहते हैं। अब 8 साल हो चुके हैं, जोया वापस आने वाली है एंड कुंदन उसके घर का फ्री का नौकर बन चुका है। सिलेंडर लाने से लेकर नल ठीक करने तक वो सब कर रहा है कि बस उसकी शादी हो जाए जोया से। उसकी कोई जॉब करियर गोल नहीं दिखाया गया है मूवी में बाय द वे, पर जोया की याददाश्त खो चुकी है, उसको वो बिल्कुल याद नहीं है। इतनी बेइज्जती काफी थी बट फिर भी वो उसको याद दिलाता है एंड आस्क हर टू मैरी हिम, जिसके बाद वो कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देती है उसे कि
कि उस वक्त हम सिर्फ 9th में थे। इतनी बेइज्जती भी काफी थी, बट वो स्टिल उसके पीछे पड़ा रहता है एंड डिल्यूजन में रहता है कि ये मुझसे शादी कर लेगी एक दिन। देखा जाए तो जोया वाज नेवर इंटरेस्टेड इन हिम, पर फिर भी जब उसे लड़के वाले देखने आते हैं तब कुंदन का एग्रेशन देखने वाला होता है। वो ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे उसे चीट किया गया हो एंड जोया को भी अच्छे से पता है कि कुंदन उसे पसंद करता है, फिर भी वो उसे आधी बात बताती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी। ये नहीं बताती कि क्यों नहीं करनी। सो दोनों में से कोई भी इनोसेंट नहीं है। शायद बिंदिया का कैरेक्टर ही इनोसेंट है मूवी में, जो कुंदन को पसंद करती है। सो ये दोनों उसे उस डॉक्टर लड़के के पास भेजते हैं जिससे जोया की शादी होने वाली है, ताकि वो कुछ ऐसी हरकतें करे और ये लोग कुछ इनअप्रोप्रिएट पिक्चर्स खींच लें और जोया के घर वाले शादी कैंसिल कर दें। एंड बिंदिया लिटरली रो रही होती है कि उसे ये नहीं करना, पर ये चीज भी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगी क्योंकि पीछे यार रहमान का गाना चल रहा है। एंड ऐसी और भी बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं इस मूवी में। कुंदन की जलन के कारण ही वो लड़का मर जाता है जिससे जोया प्यार करती है एंड फिर इसी गिल्ट में कुंदन मर जाता है। पर फिर भी मूवी को खराब नहीं कह सकते क्योंकि ये चीजें होती है हमारी सोसाइटी में एंड कहीं भी कुछ भी जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की गई है, किसी को भी अच्छा महान बनाने की कोशिश नहीं की गई है। एंड वही खास चीज थी यहाँ पर। कुंदन ने अपनी पूरी लाइफ बस जोया जोया किया। लास्ट में भी वो अपनी गलती के गिल्ट में उसकी मदद करता रहा, उसकी वजह से दूसरों को हर्ट करता रहा, दूसरों के इमोशंस के साथ खेलता रहा। तो अभी वो करेगा क्या जी के? उसका कोई ड्रीम कोई मोटिवेशन है ही नहीं लाइफ में एंड जोया उसे कभी अपनाने नहीं वाली बिकॉज वो उसे कभी पसंद था ही नहीं एंड उसी की वजह से शी लॉस्ट हर लव। जस्ट बिकॉज अब हम एआई से कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम कुछ भी करें। मूवी एक्टिंग ये सारी जॉब तो एआई नहीं छीन सकता क्योंकि इसमें रियल इमोशंस चाहिए होते हैं। फिल्म मेकर नीरज पांडे जिन्होंने स्पेशल 26, बेबी जैसी मूवीज बनाई हैं, उन्होंने भी इस चीज के अगेंस्ट बोला है। He said even if Eros says it has the rights, still no excuses to do it। उन्होंने कहा एआई सिर्फ एक टूल है, ह्यूमंस उसे ऑपरेट कर रहे हैं। सो इट्स द इंटेंट बिहाइंड इट्स यूज दैट मैटर्स एंड इफ अ पीस ऑफ सिनेमा हैज बीन अल्टर्ड विदाउट इन्वॉल्विंग डायरेक्टर राइटर देन इट्स अटरली डिसरिस्पेक्टफुल। तो उनका भी यही कहना है कि एक बार एटलीस्ट बात करनी चाहिए थे डायरेक्टर राइटर से, क्योंकि रॉस बस एक कंपनी है जिनकी सोच जिनका विजन लगता है मूवी बनाने के लिए, उनके लिए सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया तो नहीं हो सकता। उनका इमोशन जुड़ा होता है उस कहानी से एंड अभी 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। आज तक लोगों को ये कहानी याद है, तो कुछ तो बात होगी। और भी लोग जैसे कबीर खान, कनिका डिलॉन, वरुण ग्रोवर, रेणुका शाहानी इस चीज को अनएथिकल कह रहे हैं। किसी ने लिखा वी फेल्ट हिज हार्ट ब्रेक व्हेन ही सेड अब साला उठे कौन। दैट पेन, दैट imperfection was what make Ranjana raw, human and unforgettable. Art isn't meant to be fixed by code. It is meant to be felt, debated, even left imperfect. What they have done is not editing, it's erasing, stripping away the soul. A story and replacing it with lifeless, manufactured copy. Ranjana was supposed to hurt, to stay with. Not supposed to be rewritten by a machine, chasing fake closure. AI can never match human emotion, human creativity. AI climax disappointed every Ranjana fans. No AI version can replace original Ranjana. पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस न्यू वर्जन से खुश हैं। जैसे किसी ने लिखा changing climax of Ranjana by AI is a bad idea for sure, but to see the positive ending heal something in me. I'm not saying the new climax is the best, but watching it did bring some happiness. Kundan is still alive. AI version of climax. My Kundan is alive. I'm so emotional while watching. Thank you AI. और ऐसे ही फैंस की वजह से जिनको कुंदन के कैरेक्टर से बहुत सिंपैथी है, शायद ये आइडिया आया होगा कि एंडिंग चेंज करते हैं। बट इट्स अबाउट राइटर एंड डायरेक्टर कि वो क्या पेश करना चाहते हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि दूसरे क्या चाहते हैं। इट्स लाइक स्टीलिंग एंड एडिटिंग समवन्स आइडिया। आनंद एलराज ऑल्सो सेड some stories are meant to end in pain, because that pain made the love unforgettable. Kundan didn't need to wake up to win. He loved without expecting anything. And in the end, Zoya cried. She felt his absence. She saw his love. That was his victory. This is the end. So why change it now? Why wake him up? For applause? For comfort? If that was the goal, Ranjana could have been just another love story. वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।